Good morning, children. This is Vaibhav Kulkarni, TGT Maths, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Usmanabad, Taluka Turzapur. Actually, you might have seen so far so many videos I have prepared on class 9th standard Maths, class 10th standard Maths. My target is to finish off this 9th standard Maths as well as 10th standard Maths for the students. And along with that, I have also prepared some videos called as Basic Maths for All, in which so far I have almost completed 20 videos and I will be taking up to 40 videos. So the content of the videos is to help the students who are having the problems in their basics. If the students see those basics and they try to do the problems of 9th and 10th standard, I feel that they will feel 9th and standard Maths very easy, because as an experienced teacher from last 26 years and plus some 3 years outside Navodaya, I have come to know some of the difficulties that the student face when they come in 9th and 10th standard. So with that intention, I have prepared the videos for Basic Maths also. Now this Basic Maths video can be seen even by 6th standard students, 7th standard students, 8th standard students, 9th standard students and 10th standard students. My channel name, as you all know, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. This is my channel name. The purpose of making this channel is to give standard coaching to the students who are suffering a lot because of this corona pandemics. Students are finding it very difficult to get the teachers. Most of the colleges are closed, most of the schools are closed, and in that context, students should be able to do maths. With that noble intention, this channel has been started. So I hope you might have already started seeing my channel. I want that you should subscribe it, share it, and even you can share your comments so that we can have an interactive class through mobile and through my internet, through my YouTube channel, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. And again, one good news that I am going to give you all, dear children, is I am also shortly starting this on my Facebook also. So shortly you will be seeing me on the Facebook also. You need to search for my page and then you click on my page and then you will get all the updates on the Facebook also. So dear children, try to understand the noble intention and share with as many people as you can. And you are free to share your views in the comment box. Children, I welcome you all to Basic Maths for All, day 24. And in that we are continuing with parts of a circle. If you remember, dear children, what we discussed in the first episode is regarding what is a circle. It is a set of points equidistant from a fixed point from the center, radius, the distance from the center of a circle to circumference, diameter, a chord passing through the center of a circle, chord, a line that touches the circle at 2 points. So we discussed various definitions in that. So many radius can be drawn or infinite radius can be drawn in a circle, and then the difference between the chord and the diameter. So I explained you all the basic definitions of a circle. सर्कल के सारे बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताया, मगर बच्चों सर्कल एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप 9th स्टैंडर्ड की किताब खोल के देखोगे उसमें सर्कल मिलेगा, 10th स्टैंडर्ड की किताब खोल के देखोगे उसमें सर्कल मिलेगा, उससे पहले वाले किताब खोल के देखोगे उसमें सर्कल आपको मिलेगा। तो ये जो हमारा एपिसोड है शायद और एक तीसरा एपिसोड, तो 3 एपिसोड के अंदर मैं सर्कल पूरा कंप्लीट टॉपिक आपका मैं कवर करके दे रहा हूँ, ताकि हमारा 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी अगर इस तीनों एपिसोड को देख ले तो वो 10th स्टैंडर्ड तक की जानकारी वो हासिल कर सकता है। तो इतना मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट बेसिक्स, नॉट द वी आर नॉट एंटरिंग इनटू द सर्कल्स, आई एम टेलिंग यू द बेसिक्स ऑफ अ सर्कल, व्हाट यू ऑट टू नो, आपको क्या ज़रूरत है। तो उसी डेफिनेशंस को आगे कंटिन्यू करते हुए और एक सर्कल के अंदर पार्ट आता है सेक्टर। देखिए सेक्टर, ये नाम से ही पता चलता है कि सेक्शन। तो यहाँ पर सर्कल का सेक्शन में क्या होता है, तो सेक्टर का मतलब होता है ये रेडियस है OA और ये रेडियस है OB और ये है आर्क AB। तो ये 2 रेडियस और आर्क के बीच में
जो एरिया है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो आप बोलोगे सर ये 2 रेडियस है सर और ये भी एक आर्क है सर, तो क्या उसको सेक्टर नहीं कह सकते? बिल्कुल, इसको भी सेक्टर कहते हैं, इसको भी सेक्टर कहते हैं। सो व्हाट इज द सेक्टर? द एरिया बिटवीन द रेडियाई ऑफ अ सर्कल एंड एन आर्क इज कॉल्ड एज सेक्टर। तो यहाँ पर रेडियस है और माइनर आर्क है, द एरिया बिटवीन द रेडियस एंड माइनर आर्क दिया है, इसीलिए इसको कहा जाता है माइनर सेक्टर। तो पहला सेंटेंस है व्हाट इज द सेक्टर? एरिया बॉन्डेड बिटवीन रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड एन आर्क इज कॉल्ड एज सेक्टर। तो सेक्टर के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है? माइनर सेक्टर आता है। तो माइनर सेक्टर कहाँ पर आता है? माइनर सेक्टर का मतलब क्या होता है? माइनर सेक्टर किसको कहते हैं? रेडियस और माइनर आर्क के बीच में जो एरिया उसको माइनर सेक्टर कहते हैं। एरिया बॉन्डेड बिटवीन द रेडिया एंड माइनर आर्क। उसके बाद मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर किसको कहेंगे? मेजर सेक्टर उसको कहेंगे कि रेडियस होना चाहिए और मेजर आर्क होना चाहिए। यानी व्हाट? लेट मी रिपीट व्हाट आई सेड। मैं आपको फिर से बता दूं सेक्टर का मतलब क्या होता है। 2 रेडियस और एक आर्क, उसके बीच में जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे सेक्टर। अगर 2 रेडियस और माइनर आर्क के बीच का एरिया होगा तो उसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। 2 रेडियस और मेजर आर्क का एरिया होगा तो उसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। तो उम्मीद है आपको व्हाट इज द सेक्टर और व्हाट इज माइनर सेक्टर, व्हाट इज मेजर सेक्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ टेंजेंट। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट एनी वन पॉइंट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। मान लीजिए एक ए बी लाइन है, वो सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रहा है, तो वो उसका टेंजेंट होगा। टेंजेंट्स के अनेक उदाहरण हमारे डे टू डे लाइफ से मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे जब हमारा गाड़ी का पहिया चल रहा है तो रोड जो है वो टेंजेंट का काम कर रहा है और आपका गाड़ी का जो पहिया है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का काम कर रहा है। सो जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? सिंपल है बच्चों, जहाँ पर सर्कल टेंजेंट को मिलता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज दैट पॉइंट वेयर द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल टचेस द सर्कल ऑन द सर्कमफ्रेंस। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी इज अ टेंजेंट एट पी। तो अगला सवाल आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट बन सकते हैं? अनेक टेंजेंट बन सकते हैं। जितने सर्कल के ऊपर पॉइंट्स हैं उतने टेंजेंट बन सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। तो दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों ये सारे बेसिक डेफिनेशंस है। हमने शुरुआत की सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर हमने अभी लिया, आर्क हमने लिया, मेजर सेक्टर हमने लिया, माइनर सेक्टर हमने लिया। तो ये सारे एक सर्कल के क्या बोलते हैं उसके हिस्सा है। तो आप 6th से लेके पढ़ना शुरू करोगे तो आप 10th तक इन सभी चीज़ों में आप सेक्टर में सिमट जाओगे। फिर 11th और 12th स्टैंडर्ड में भी सेक्टर आता है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है। वो मेरे ख्याल से हमारे बेसिक्स में, हमारे सिलेबस में हम नहीं ले रहे हैं उसको, क्योंकि हमारा सिलेबस टारगेट है 6th to 10th तक का। तो इतना आप कर लोगे तो सेक्टर के सारे पहलू के ऊपर हमने रोशनी डाल दी। तो बाद में अभी एक एक करके प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड वाइस वर्सा। मैंने शब्द का यूज़ किया है। बाप रे, सर ने तो एटम बम डाल दिया हमारे ऊपर। क्या भयानक शब्द का यूज़ किया। सिंपल है बच्चों, सिंपल है। क्या सिंपल है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए ये EF 5 सेंटीमीटर है, ये AB 5 सेंटीमीटर है, ये CD 5 सेंटीमीटर है, ये तीनों इक्वल कॉर्ड है और ये अगर मान लीजिए 70 डिग्री बना रहा है तो ये भी 70 ही बनाएगा और ये भी 70 ही बनाएगा। इसका मतलब होता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हाँ सर, अब समझ में आया है, सही है। यही तो मैं आपको कह रहा था, यानी अगर कॉर्ड्स की लंबाई सेम होगी तो सेंटर में एंगल जो बनेगा वो सेम होगा। डू यू अंडरस्टैंड? वंस अगेन आई एक्सप्लेन इंग्लिश। इफ द लेंथ्स ऑफ द कॉर्ड्स आर इक्वल द एंगल मेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर विल बी इक्वल। मगर इतना
अलग सा डेफिनेशन देने की वजह हमने क्या बोला उसको, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। सर वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? वाइस वर्सा का मतलब ये होता है उल्टी बात। फॉर एग्जाम्पल सर अगर एंगल तीनों सेम है तो कॉर्ड की लंबाई सेम होगी क्या? बिल्कुल सही है। कितनी होगी ये नहीं मैं बता सकता, मगर लंबाई सेम होगी। मगर एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री और ये 70 डिग्री है मान लो, तो ये तीनों इक्वल होंगे। जरूरी नहीं कि वो 5 सेंटीमीटर ही हो, वो 6 भी हो सकते हैं, वो 7 भी हो सकते हैं, 3.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। बट यानी अगर मुझे छोटी सी बात करनी है तो अगर कॉर्ड्स की लंबाई सेम होगी तो सेंटर में जो एंगल बनेगा वो भी सेम होगा, और सेंटर में जो एंगल अगर सेम होगा तो कॉर्ड्स की लंबाई भी सेम होगी। यानी इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, और if the angles at the center are equal then the length of the chords are also equal। तो ये हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये एक कॉर्ड है ए बी, ये एक कॉर्ड है सी डी, इसकी लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है ऐसे मान के चलेंगे, दिस इज 5 एंड दिस इज 5, और ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल से मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। न केवल 3 सेंटीमीटर, इस सर्कल के अंदर जितने सारे कॉर्ड्स 5 सेंटीमीटर के होंगे वो सारे कॉर्ड्स सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर इस एक सर्कल के अंदर अनेक कॉर्ड्स बना सकते हैं, तो मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया, उसके अंदर 10 कॉर्ड बनाए, सारे 3 सेंटीमीटर के हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका डिस्टेंस, सारे इक्वल कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा। जरूरी नहीं कि वो 3 सेंटीमीटर हो, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितना हो सकता है ये नहीं बता सकता मैं, बट आई कैन श्योरली टेल यू दैट इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑल्सो इक्वल। कॉर्ड्स की लंबाई अगर सर्कल से सेम होता है तो कॉर्ड्स की लंबाई अगर सेम होती है तो सर्कल के सेंटर से उनकी दूरी सेम होगी। और सर्कल के नेक्स्ट आता है वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? वाइस वर्सा का मतलब ये होता है सर अगर सेंटर से दूरी सेम हो तो क्या कॉर्ड्स की लंबाई सेम होगी? बिल्कुल। सर अगर मैंने एक सर्कल बनाया सर, उसके अंदर मैंने 10 कॉर्ड बनाए सर, और 10 के 10 कॉर्ड 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो क्या होगा सर? मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि 10 कॉर्ड की लंबाई कितनी है, मगर ये जरूर बता पाऊंगा कि अगर 10 कॉर्ड की लंबाई सेम है तो उनकी सेंटर से दूरी सेम होगी। दैट मीन्स if the length of the chords are equal, distance from the center are equal, and if the distance from the center are equal, length of the chords are equal। यानी chords की लंबाई सेम रही तो सेंटर से दूरी सेम होगी, और अगर सेंटर से दूरी सेम होगी तो chords की लंबाई सेम होगी। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आता होगा। chords की लंबाई सेम होगी तो एंगल सेम होगा, एंगल सेम होगा तो chords की लंबाई सेम होगी। ये था हमारा पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या था? कॉर्ड्स की लंबाई सेम है, सेंटर से डिस्टेंस सेम है। तो आप कितने भी आप चाहे तो आप ऐसे बना सकते हो। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बच्चों बाइसेक्ट ये इंपॉर्टेंट शब्द है। सेक्ट का मतलब होता है सेक्शन, बाई का मतलब होता है 2, बाई सेक्शन 2 सेक्शन। किसके द्वारा सेक्शन 2 होगा? अगर ये ए बी, बच्चों देखिए आप, ए बी एक कॉर्ड है और ओ एम एक परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है बच्चों, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनकी लंबाई दोनों की सेम होगी। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ए बी मान लीजिए अगर 8 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई अगर मैंने 8 सेंटीमीटर ले ली और यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो। सर अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो नहीं होगा। इसीलिए सेंटेंस क्या कहता है? परपेंडिकुलर। कहाँ से होना चाहिए? सेंटर ऑफ अ सर्कल से होना चाहिए। क्या करेगा? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सर अगर ये पहले से अगर ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा।
परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्ट होगा और बाइसेक्ट होगा तो परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब होता है ये होता है वाइस वर्सा। तो बच्चों ये सारी बातें आज हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ी। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्लास खत्म होने से पहले हमने स्टार्ट किया सेक्टर से। सेक्टर का मतलब होता है द एरिया बॉन्डेड बिटवीन द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड ए आर्क। अगर रेडिया ऑफ ए सर्कल और माइनर आर्क है तो उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल और मेजर आर्क है तो उसको मेजर सेक्टर कहा जाता है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? द लाइन दैट टचेस द सर्कल एट एनी वन पॉइंट इन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एज टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट वी स्टडीड, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स आर इक्वल देन एंगल मेड बाय दोस कॉर्ड्स एट द सेंटर विल बी इक्वल। और वाइस वर्सा भी है, इफ द एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स आर इक्वल। नेक्स्ट आता है इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल एंड इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी इसका मतलब सारे अगर इसमें जितने भी 5-5 सेंटीमीटर के कॉर्ड बनेंगे सारे सेम एंगल बनाएंगे। 70 तो मैंने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर भी जितने भी इक्वल कॉर्ड बनेंगे वो सारे अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो सारे 3 सेंटीमीटर होंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो कल हमारा लास्ट एपिसोड होगा सर्कल का, और इस लास्ट एपिसोड के बाद फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड और थर्ड एपिसोड के ऊपर एक हम छोटा सा क्विज आपका, we want to check how much you understood from the definitions of the circles, properties of circles. So I have covered the wide range right from 6th standard to 10th standard. All the basic definitions about the circle is covered in this entire 3 episodes. The details of this you will study as soon as you enter that particular class. जैसे आप किसी 10th में जाओगे तो 10th में उसका डिटेल पढ़ोगे, 9th में जाओगे तो 9th में उसका डिटेल पढ़ोगे, 8th में जाओगे तो 8th में उसका डिटेल पढ़ोगे। तो जिस क्लास में भी आप जाओगे वहाँ पर उस विषय के डिटेल्स के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। मगर अब हम तो आपको सिर्फ सर्कल के बाहर घुमा रहे हैं, सर्कल का बेसिक्स क्या है वो आपको बता रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड समझ में आ गया होगा। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार है। आई जस्ट सी एंड अंडरस्टैंड योर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।